Welcome everyone. Welcome to AK Academy. My name is Sudeep Saha, and today we'll learn about something very fundamental, which is the old quantum mechanics. The pre-quantum mechanics era, where scientists or physicists were trying to explain the different kinds of experimental findings. Okay, as a result of that, we get the wave-particle duality, and that's a evident consequence of that wave particle duality is the uncertainty principle, and we're going to understand how. Okay, so my name is Sudeep Saha. Okay, so let's start. Okay, so till now we have studied the photoelectric effect and Bohr quantization rule. Okay, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा है कि जो एनर्जी होती है दैट इज एक्चुअली क्वांटाइज्ड. ओके, व्हिच मींस कि जो रेडिएशन का जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं, और वो एक एक पैकेट का जो वैल्यू है वो है एच न्यू, बट एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन. ओके, एंड in Bohr quantization rule, we saw that angular momentum of an electron in a particular orbit is not arbitrary. It is actually equal to nh over 2 pi. Okay, if this quantization rule is satisfied, then it's a stationary orbit. Okay, then all those assumptions that it won't radiate any energy, it won't gain any energy, and blah blah blah, would be satisfied. Okay, and as a consequence of that, we saw that the energy of hydrogen atom is also quantized. Okay, so in Bohr quantum theory, we saw that a angular momentum quantization leads to quantization of energy. Okay, बट ये जो जो दो रूल हमने अभी तक पढ़े हैं, इनका कोई मतलब ये बस एडहॉक एजम्पशंस है. ओके, एडहॉक एजम्पशंस मीन्स कि बस एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये बस बता दिया गया था कि अगर ये ऐसा होता है तो ये हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, तो इसका कोई ठोस प्रिंसिपल नहीं था या फिर कोई बेसिक प्रिंसिपल नहीं था जहां से ये हमें एज अ कॉन्सिक्वेंस मिल सके. बट in 1916, Wilson and Sommerfeld gave a set of rules for quantization for any physical system, okay, for which the coordinates are periodic function of time. Okay, तो 1996 में विल्सन एंड सोमरफेल्ड ने एक रूल दिया जिससे हम किसी भी फिजिकल सिस्टम को हम क्वांटाइज्ड कर सकते हैं. ओके, और उसका कंडीशन क्या है कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, the coordinates are periodic function of time. Okay, let's read out the rule. For any physical system in which the coordinates are periodic function of time, there exists a quantum condition for each coordinate. These quantum conditions are integration over pi dqi equals nih, where qi is one of the coordinates and pi is the momentum associated with that coordinate. Okay, a9 is the quantum number taking integral values. Okay, अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या है. तो देखिए क्यू आई जो है दोज आर कोऑर्डिनेट्स, एंड ये कौन से कोऑर्डिनेट्स है. देखिए कोई भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए इन स्पेस हमें कुछ सेटअप कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं. ओके, लाइक अगर हम एक पेंडुलम की बात करते हैं तो एक पेंडुलम का मैकेनिक्स अगर हमको एक्सप्लेन करना है, सो वी नीड ओनली one coordinate, which is the angle. Okay, because if we consider the radius or the length of the string is fixed, then we need only one coordinate, which is the angle of swinging. Okay, so in that case, so we need only one coordinate. but अगर हम ये कंसिडर करें कि जो लेंथ है पेंडुलम का वो भी वेरी कर रहा है, तब हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक थीटा जो एंगल वो वेरी करेगा और वो लेंथ, तो उसको हम आर मान लेते हैं. तो आर एंड थीटा आर आवर स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स
टू डिस्क्राइब द सिस्टम इन आवर हैंड। तो जैसे कि हमने देखा कि एक पेंडुलम को अगर हम फिक्स्ड लेंथ पे लेते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है, लेकिन अगर हम ये कंसिडर करें कि वेरिएबल लेंथ है तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। ओके, तो ऐसे ही कोई भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। ओके, एंड फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ओके, तो क्यू आई वैसा ही कोई कुछ एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। ओके, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम है पी आई। अब थीटा अगर होता तो उस थीटा का कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या होता? एंगुलर मोमेंटम। अगर रेडियस होता तो रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम भी होता। ओके, अगर हम पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम होता। ओके, तो ऐसे हर एक कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट एक मोमेंटम एसोसिएटेड है। ओके, कंडीशन क्या है कि these coordinates are periodic functions of time. Okay, so if we perform this integral for each coordinate, okay, this will be equal to some integer value multiplied by h, which is the Planck's constant. Okay, here this symbol, this close integration, okay, in mathematical language it is called close contour integration. Okay, this integration means that the integration is taken over a complete period of the coordinates qi. Okay, so and this integral is called phase integral of quantum number ni. Okay, यहाँ पे ni को quantum number कहा जा रहा है। देखिए, जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तब ये समझेंगे कि मोमेंटम एंड पोजीशन मिलके एक स्पेस बनाते हैं। ओके, तो हम जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स करते हैं तो हम उस स्पेस में भी कर सकते हैं, उस स्पेस के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट है, एक है पोजीशन दूसरा मोमेंटम। ओके, एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल टॉपिक इन क्लासिकल मैकेनिक्स। इसको फेज स्पेस कहते हैं। ओके, तो ये फेज स्पेस में जो इंटीग्रल्स होते हैं उसको फेज इंटीग्रल कहते हैं। ओके, तो this is it, the Wilson-Sommerfeld quantization, which says that if we have a coordinate which is periodic in time, अब periodic का मतलब क्या होता है कि एक certain interval के बाद वही values repeat करते हैं। ओके, like in simple pendulum। ओके, एक certain time के बाद वो same path फिर से repeat होता है, that's why it is periodic। ओके, so periodicity means that, तो अगर coordinates हमारा periodic in time होता है तो this integral is equal to some integer number multiplied by Planck's constant, and ni are called quantum numbers actually। okay, तो अब इसको इस्तेमाल करके हम बोर क्वांटाइजेशन रूल को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बोर क्वांटाइजेशन रूल डिराइव करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक प्रोटॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो अब क्लासिकल मैकेनिक्स से हमें ये पता है कि इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस सिस्टम में हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ओके, देखिए ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज फिक्स्ड। ओके, so only coordinate we need is the angular coordinate। okay, so only the angular momentum will be the corresponding momentum associated with that coordinate। okay, तो अब हम जानते हैं कि अगर ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट पे अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है कांस्टेंट होता है। ओके, so this angular momentum is straight away taken out of this integral and this is integrated over this angle। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई है। जो थीटा जो उसका एंगल है, ओके, वो थीटा पीरियोडिक भी है, एक सर्टेन टाइम के बाद वो फिर से रिपीट हो रहा है जिसका वैल्यू है 0 to 2 पाई। ओके, तो इस थीटा को अगर हम उसकी पूरी वैल्यू में अगर इंटीग्रेट करें 0 to 2 पाई में तो हमें मिल जाता है 2 पाई विच इज इक्वल टू NH। अब P इज इक्वल टू NH over 2 पाई।
तो p theta क्या है? p theta is nothing but the angular momentum which is denoted by this L. Okay, so we may write L equals NH over 2 pi. ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे बोर्स क्वांटाइजेशन कैसे ये सोमरफील्ड विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल लगा के हम ये बोर क्वांटाइजेशन रूल डिराइव कर सकते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पे एक कैच है कि यहाँ पे मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हम ये जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस का जो भी सिस्टम ले रहे हैं ना, दिस इज लाइक अ क्लासिकल पिक्चर. ओके, क्लासिकल पिक्चर मीन्स हम प्रोटॉन को फिक्स मान रहे हैं. ओके, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक एज अ पार्टिकल हम ट्रीट कर रहे हैं. ओके, दिस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम इज लाइक पार्टिकल टू पार्टिकल सिस्टम, टू बॉडी सिस्टम, और वहां पे हम कुछ क्वांटाइजेशन रूल लगा रहे हैं to explain the experimental findings. Okay, but there is another way to look at this system. Okay, and we'll get the same result out of it. Okay, what is that? Which is the famous wave particle duality due to de Broglie. Okay, de Broglie in his 1925 paper wrote that the basic idea of quantum theory is, of course, the impossibility of considering an isolated fragment of energy without assigning a certain frequency to it. Okay, de Broglie hypothesis हमें ये बताता है बेसिकली कि जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपीरियंस से हम जानते हैं कि जो एनर्जी पैकेट्स है, ओके, दैट एनर्जी पैकेट्स को डिफाइन करने के लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ रही है, एंड फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव. ओके, सो de Broglie said every moving particle has some wavelength associated with it, जिसको मैटर वेव भी कहा जाता है. ओके, एंड व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ दैट object? Okay, which is given by lambda is h bar h over p, where h is the Planck's constant and p is the momentum. Okay, so this is the wave particle duality, which means a particle can have both the nature. It can have the particle nature, it can also have a wave nature. अब आप समझ सकते हो कि हम डे टू डे एक्सपीरियंस में, ये डे टू डे लाइफ में हम ये चीज एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते. जस्ट बिकॉज द प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस प्लैंक्स कांस्टेंट इज एक्सट्रीमली स्मॉल. ओके, दिस प्लैंक्स कांस्टेंट इज of the order of 10 to the power minus 34. Okay, if the Planck's constant would be just one unity, I mean if h equals to 1, this lambda will be really comparable, okay, to our day-to-day life. There is a famous book on this actually, मिस्टर टॉमकिंस इन वंडरलैंड. आप चाहे तो वो पढ़ सकते हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उस बुक के बारे में, बट देयर इज अ वेरी फेमस बुक अबाउट इट. इट्स अ स्टोरी एक्चुअली. सो तो ये h जो है, ये h बहुत ही छोटा है, इस वजह से ये लैम्डा जो है वो हमारे कोई भी एक डे टू डे जो पार्टिकल से हम डील करते हैं, जो भी हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस में ये जो लैम्डा होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है. ओके, तो वो वेवी नेचर हमें दिखता नहीं है बेसिकली. ओके, बट दिस इज अ वेरी काउंटर इंट्यूटिव थिंग. ओके, आई मीन कोई ऐसा कैसे सोच सकता है कि एक पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम एक पार्टिकल की तरह जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक वेव भी है. Okay, so this is a very counterintuitive, but as we'll see that this is the most important discovery in physics. Okay, and it will explain a lot of things. Okay, and this single idea of wave particle duality, the single idea of wave particle duality will is the basically the basis of quantum mechanics. Okay, तो क्वांटम मैकेनिक्स, तो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली इसके ऊपर बेस्ड है. ओके, एंड इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके हमें एक बहुत ही अच्छा एक और भी मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलेगा. ओके, तो लेट्स गो टू दैट. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हम बोल रहे हैं कि
कि डी ब्रॉगली जो बोल रहा है, डी ब्रॉय जो बोल रहा है कि मैटर हैज अ wave associated with it, okay, and which is given by h by p, and the p is the momentum. तो इसको हम अप्लाई करते हैं बोर क्वांटाइजेशन लॉ को समझने के लिए, ओके। अच्छा, तो मान लेते हैं कि अब हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नहीं, एक वेव है, ओके। तो देखिए, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स 3 में रहता है, ओके, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वेव्स होंगे वो इंटीजर नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन वेव कैन बी एडजस्टेड अराउंड एन ऑर्बिट only when the circumference of the orbit can contain exactly an integral number of de Broglie wavelength, okay। तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक फुल वेव है, ये दिस इज अ फुल वेव, ओके। अब इस रेडियस को अगर हमें पूरा करना है तो हमें ऐसे ही इंटीग्रल नंबर पे वेव्स चाहिए, ओके। ऐसा क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि अगर ये इंटीग्रल नंबर पे नहीं होता ना, तो ये जो वेव्स है ये अपने बीच एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता और उसकी एम्पलीट्यूड 0 हो जाती और हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलता नहीं। तो ये आइडिया आप यहाँ से समझ सकते हो, ये जो एक स्ट्रिंग है ये, और ये स्ट्रिंग का एक तरफ जो है ये बंधा हुआ है और एक तरफ आप ऐसे अगर शेक करते हो तो आप कितनी जोर से शेक करते हो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बनते हैं, ओके। अगर आप एक तरह से शेक कर रहे हो तो इसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी, ओके। ये इस तरह से शेक करते हो तो यहाँ पे ऐसी एक शेप बन सकता है। तो बेसिकली ये क्या है कि यहाँ से एक वेव इस तरफ जा रहा है और यहाँ से एक वेव इस तरफ आ रहा है, तो दोनों वेव्स जब कोलाइड करते हैं, जो इंटरफेयर करते हैं, तो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर होता है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर होता है। ऐसे वेव्स को स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है, ओके। तो यहाँ पर भी ऐसे स्टेशनरी वेव्स क्रिएट होते हैं, ओके। अगर यहाँ पे इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स रहेंगे तभी ये स्टेशनरी वेव्स बनेंगे, अदरवाइज ये अपने बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करके ये 0 हो जाएगा, ओके। ओके, तो अब इस चीज को समझते हैं। तो जैसे हमने देखा कि जो कोई भी एक अगर रेडियस है तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स चाहिए, ओके। सो दिस इज द कंडीशन फॉर दैट, ओके। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लैम्डा की वैल्यू हम जानते हैं ड ब्रॉय हाइपोथेसिस से h ओवर mv, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो r की वैल्यू हमें ये मिल जाती है। अब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो एंगुलर मोमेंटम इज mvr व्हिच इज nh/2 तो हम देख लेते हैं कि देख रहे हैं कि ये बोर क्वांटाइजेशन लॉ है, ओके। सो the other way of looking at the system, which is the wave particle duality, which says that every particle has a wave nature associated with it, is also true because it gives us the same quantization law as Wilson-Sommerfeld quantization, okay। तो हम इसी को अब आगे बढ़ाते हैं, ओके। ये कितना भी बिजार लगता है, कितना भी काउंटर इंट्यूटिव लगता है, बट दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ about the quantum world, okay। There is actually a waves, not a single particle. You cannot just pinpoint an electron, and we'll see why, okay। So an important consequence of wave particle duality is the uncertainty principle, okay। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, कैसे है, एंड व्हाट आर द consequences, why it is there, I'll explain। Let's just read out the uncertainty principle first, okay। उसके बाद हम समझेंगे इस चीज को। If the x coordinate of the position of a particle is known to an accuracy delta x, then the x component of momentum cannot be determined to an accuracy better than delta px almost h by delta x, where h is the Planck's constant, okay। Alternatively, we can say that if delta x and delta px represent the accuracies with which the x coordinate of the position and x component of momentum can be determined, then the following inequality must be satisfied, which is delta x delta px greater than equal to h, okay।
अब देखिए दिस इज एन इक्वालिटी, ओके। सो यहाँ पे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करके ये h का जो वैल्यू है ना, ये जो h है इसको हम डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। कई जगह पे हम h बार इस्तेमाल करेंगे, ओके, कई जगह पे h बार ओवर 2 इस्तेमाल करेंगे, बट दिस इक्वालिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड, which means that the uncertainty in x and uncertainty in px would be of the order of h, which means 10 to the power minus 34, एंड दिस इज द मिनिमम ऑफ दैट। इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, ओके। विच विल बी, जैसे आप जानते हैं कि h इज नथिंग बट h बार ओवर 2 पाई, तो h को अगर आप 2 पाई से डिवाइड करते हो तो उसकी ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता, वो 10 टू द पावर माइनस 34 में ही रहता है। तो सिचुएशन के हिसाब से हम इसको h बार भी यूज कर सकते हैं और h बार ओवर 2 भी यूज करते हैं किसी किसी जगह पे, बट the main thing is to remember or to understand is that this uncertainty product would be of the order of h, which means 10 to the power minus 34. What do we mean by accuracy delta x or uncertainty delta x? Okay, it means that you can say an electron is present within the range of 0.000005 nanometer. Okay, I mean we have resolved an electron within this range, but I don't know where is the electron. Okay, in quantum mechanics we cannot pinpoint an electron. Okay, this is the this is the coordinate, which is x equals abc. This is the coordinate in 3 dimension. Okay, let's go and see there is an electron. We cannot say that in quantum mechanics. Okay, just because a particle concept in quantum mechanics just doesn't exist. Okay, we can always say that within some accuracy, within some known range, within some range there is an electron, okay, and within that range the electron also has some momentum, okay, which is h over delta x. Okay, mind you, this is not an instrumental fault. आप सोच सकते हो कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिशन बढ़ा दें, ओके, तो हम इलेक्ट्रॉन को पिन पॉइंट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द ट्रू, दिस इज द नेचर, दिस इज द रियलिटी ऑफ नेचर कि हम एक इलेक्ट्रॉन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज इन क्वांटम वर्ल्ड देयर इज नथिंग called an electron. Okay, we cannot say an electron is a particle inside an atom. Okay, it's always in its wave form. Okay, so you actually cannot pinpoint a wave. I mean, this is impossible. I mean, I'll just explain why it is so. So for that, let's see this diagram. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला फिगर 1.8 है, दिस इज अ वेव। ओके, अब ये जो दो पिक्स है, दो पिक्स के बीच अगर हम इसका लेंथ मेजर कर लेते हैं तो वो हमें वेवलेंथ देगा। तो अगर हमें किसी वेव का वेवलेंथ पता है, सो व्हाट डू वी नो अबाउट द वेव? वी कैन नो द मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम इज h बाय लैम्डा। ओके, सो अगर हमें लैम्डा पता है, व्हिच मींस अगर हमें वेवलेंथ पता है, तो हमें उसकी मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन वेयर इज द पार्टिकल इन दिस रीजन? आई मीन, कैन यू जस्ट पिन पॉइंट द पार्टिकल हियर? नो। So a wave with fairly well defined wavelength but an ill defined position. तो अब इसका उल्टा केस लेते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये पार्टिकल इस जगह पर है, लेकिन अब उसका वेवलेंथ कैसे मेजर करोगे? देयर इज नो वेव एक्चुअली, सो हाउ कैन यू जस्ट मेजर इट्स वेवलेंथ? तो पोजीशन हमारे पास सही है, पोजीशन हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम उसका मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो अगर हमें कोई एक इंफॉर्मेशन है, सपोज हमें पोजीशन का अनसर्टेनिटी पता है कि इस रीजन के बीच हमारा पार्टिकल है, तो उसका मोमेंटम क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, which is given by h divided by this uncertainty, okay, which is called delta x. okay, तो अब हम देखेंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को
यूज करके हम कैसे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. आई मीन qualitatively, not quantitatively. I'll just explain how we can actually get similar results of diffraction, single slit diffraction, using quantum mechanics and uncertainty principle. Okay, so पहले समझ लेते हैं कि ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होता क्या है. तो सपोज ये एक स्लिट है, ये एक लाइट सोर्स है. तो सपोज ये एक स्लिट है और ये एक लाइट सोर्स है. तो मान लीजिए अब ये एक स्क्रीन है, एक स्क्रीन के पास आप अपने आंख को रखे हैं. ओके, एंड आप मैन्युअली इस स्लिट का जो विड्थ होता है उस विड्थ को आप छोटा कर रहे हो. तो आप क्या देखोगे, ये जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होगा. लेकिन एट सम पर्टिकुलर पॉइंट जब आप उस स्लिट को छोटा कर रहे हो तो एट सम पर्टिकुलर पॉइंट सडनली उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और फिर से वो इंटेंसिटी घटते घटते वो अब जब बंद कर दोगे तब तो कोई लाइट आएगा ही नहीं. ओके, तो ये जो सडनली इंटेंसिटी बढ़ने का जो फेनोमेनन है इसको सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कहते हैं. ओके, अब उस पॉइंट पे इस स्लिट को रख के जब इंटेंसिटी सडनली बढ़ जाता है, अगर हम इसको एक स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखेंगे तो हमें कुछ इंटेंसिटी के कुछ पैटर्न मिलता है. तो बीच वाला जो होता है वो थोड़ा हाईली इंटेंस होता है, उसके बाद इंटेंसिटी घटता रहता है. ओके, ये बस एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, लेकिन अगर आप असल में देखोगे तो ये बीच वाला जो होता है वो ज़्यादा ब्राइट होता है, बाकी सारे थोड़े कम ब्राइट होते हैं. ओके, सो दिस इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. ओके, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को अब हम क्वांटम मैकेनिक्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू समझेंगे. ओके, अच्छा, तो मैंने यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट सेट किया है. ये ऊपर x डायरेक्शन है, ये सामने y डायरेक्शन है. ओके, अब सपोज ये जो छोटा सा रीजन है, ये सोर्स एंड ये जो स्लिट का जो छोटा सा रीजन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है. ओके, तो अब आप देख सकते हो ये जो स्लिट विड्थ है, ये जो इसका विड्थ है b और ये जो डिस्टेंस है ये d है. अब ये जो एंगल है दिस इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट दैट b इक्वल टू d थीटा. सो थीटा इज इक्वल टू b बाई डी. ओके, तो लेट्स सपोज यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है. ओके, तो ये जो ऊपर वाला जो मोमेंटम होगा उसकी कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे ऊपर वाला मैंने x डायरेक्शन लिया है, तो x डायरेक्शन में उसकी कंपोनेंट क्या होगी, near about p sin theta, because its theta is so small that we are considering p sin theta. Okay, so p sin theta, which is almost p theta because sin theta is so small. Okay, so अगर ये है तो क्या है, तो px की वैल्यू क्या होगी, p b by d. Okay, which is near about, we can make this component okay close to zero by increasing d. तो अगर हम स्लिट और ये जो सोर्स है उसका जो डिस्टेंस है उसको हम बढ़ा देते हैं तो ये जो x कंपोनेंट है उसको हम प्रैक्टिकली जीरो कर सकते हैं. ओके, व्हिच मीन्स दैट जो फोटॉन्स यहाँ से ये स्लिट के थ्रू जा रहा है उसका x कंपोनेंट x डायरेक्शन में, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में कोई मोमेंटम है नहीं. ओके, बस ये y डायरेक्शन में उसका एक मोमेंटम है. ओके, यहाँ तक क्लियर है. तो उसके बाद जब ये फोटोन इस स्लिट के अंदर जा रहा है, ओके, ये स्लिट के अंदर जा रहा है, तब x डायरेक्शन में उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, b, व्हिच मींस वो फोटोन इस स्लिट के अंदर कहीं भी रह सकता है. ओके, जिसका, और ये स्लिट विड्थ भी बहुत छोटा है तो उसका मैक्सिमम जो अनसर्टेनिटी हमें मिल सकता है वो है b. अब देखिए, पहले जब यहाँ से आ रहा था तब उसकी x डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था, बस y डायरेक्शन में मोमेंटम थी. ओके, अब जब वो यहाँ पर स्लिट के अंदर है तब उसकी अनसर्टेनिटी x डायरेक्शन में बन गई b, और उस हिसाब से अगर हम अनसर्टेनिटी x डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं या फिर अनसर्टेनिटी x डायरेक्शन में जो होगी वो है h ओवर b. तो देखिए पहले x डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था नहीं, लेकिन जैसे ही उसने स्लिट के अंदर गया उसके x डायरेक्शन में एक मोमेंटम आ गया. ओके,
and whose value is h over b using uncertainty principle. Okay, now x direction में क्या है, जो मोमेंटम p sin थीटा, अब p sin थीटा is h over b, तो sin थीटा is h over pb. ओके, अब p equals h over lambda हम जानते हैं, तो sin थीटा is lambda over b. ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो फोटोन है वो फोटोन किस एंगल में निकल रहा है वो स्लिट विड्थ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हमें ये रिजल्ट मिला कि जैसे हम ये स्लिट विड्थ बढ़ा छोटा करते हैं, ये थीटा क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. ओके, तो we saw that how uncertainty principle and quantum mechanics can actually explain the single slit diffraction. Okay, this is a very established result of single slit diffraction, that angle is linear proportional to lambda, the wavelength, and inversely proportional to the slit width. Okay, तो यहाँ से हम एक्चुअली क्वालिटेटिवली देख सकते हैं कि कैसे अगर हम इसको छोटा करते हैं तो थीटा बढ़ जाएगा, विच मीन्स जो फोटोन, अगर तो ये स्लिट मैंने छोटा कर दिया तो ये एंगल भी बढ़ गया और फोटोन और भी ज्यादा जो जियोमेट्रिकल शैडो रीजन है उसमें जा रहा है, और भी जा रहा है. तो हमें एक ऐसे जो स्टैंडर्ड जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो पैटर्न मिल रहा है. तो हमने देखा कि कैसे ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है. ओके ओके, तो ये बस ऐसा नहीं है कि ये बस एक थियरी है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट वाज डन फॉर न्यूट्रॉन बीम. ओके, तो न्यूट्रॉन बीम को 770 माइक्रोन का एक स्लिट विड्थ से पास किया गया था, तो वहां पे जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आया था वो कुछ ऐसा दिखता था. एंड आप देख सकते हो ये मतलब कितना मतलब छोटा है. ये जो एंगुलर जो ब्रॉडनिंग है, एंगुलर ब्रॉडनिंग इज 6.1 सेकेंड, विच इज वेरी स्मॉल. लेकिन हम स्लिट विड्थ को और छोटा कर रहे हैं, 5.6 माइक्रोन. तो अब एंगुलर ब्रॉडनिंग बढ़ गया. तो हम देख रहे हैं कि कैसे हम स्लिट विड्थ बढ़ाने से एंगुलर ब्रॉडनिंग बढ़ रहा है, विच मीन्स जो पार्टिकल्स है वो मोर ब्रॉड एंगल में डेविएट कर रहा है. ओके, डिफ्रैक्टेड हो रहा है, मोर ब्रॉड एंगल में डिफ्रैक्टेड हो रहा है. अब 4.1 माइक्रोन में ये और भी ज्यादा है. ओके, तो मतलब ये और भी छोटा है 4.1 माइक्रोन स्लिट विड्थ, तो उसकी वजह से ये एंगुलर ब्रॉडनिंग सबसे ज्यादा है. ओके, सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग. ओके, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. ओके, तो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कितना भी बिजार और काउंटर इंटुइटिव सुनाई दे, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दिस प्रिंसिपल्स आर एक्चुअली गिविंग अस द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. ओके, वी कैन एक्चुअली एक्सप्लेन the experimental result using these principles. Okay, so we can safely say that wave particle duality is a consequence of uncertainty principle, and the uncertainty principle is also a consequence of wave particle duality. Okay, these two are the pillars of quantum mechanics. Okay, and this uncertainty word will use heavily in this quantum mechanics course. Okay, in future. सो नेक्स्ट अब हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे कि कैसे हाउ स्ट्रॉन्ग इज दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ओके, कैसे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वेरियस सिस्टम पे अप्लाई करा सकते हैं. ओके, तो अभी हम जो एग्जांपल देखने जा रहे हैं उस एग्जांपल में क्या किया गया है कि सिर्फ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट रेडियस जो है वो निकाला गया है. नो quantum, no ad hoc assumptions like Bohr theory, nothing else, just uncertainty principle, and we'll get the exact results. Okay, let's see how. Okay, so we consider a hydrogen atom which consists of a proton and an electron. Since the proton is very much heavier than the electron, we consider only the motion of the electron. Let the electron be confined in a region of linear dimension A. Okay, तो जैसे आप जानते हो कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो अब मान लेते हैं कि जो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो है a. ओके, ये लीनियर डायमेंशन में वो कन्फाइंड है. ओके, तो द मैक्सिमम
जो अनसर्टेनिटी होगा in its position is a okay, due to that there should be a momentum okay which is h bar over a. देखिए यहाँ पे हमने h bar इस्तेमाल किया है okay, this is just to produce the exact results okay, nothing else okay, as I've explained earlier. तो उसका मोमेंटम क्या है h bar over a ओके तो काइनेटिक एनर्जी क्या है p स्क्वायर ओवर 2m ओके तो p स्क्वायर क्या है h बार स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर ओके p की वैल्यू हम यहाँ से लगा देते हैं. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है पोटेंशियल एनर्जी हम कूलॉम लॉ से जानते हैं इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम सिंपली एक चार्ज पार्टिकल समझ ले और प्रोटॉन को भी चार्ज पार्टिकल समझ ले तो उन दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दिस इज क्यू स्क्वायर ओवर माइनस 4πε0 a ओके तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज दिस ओके सो अगर इस काइनेटिक एनर्जी को फॉर द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ओके फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम वेरी कराते हैं ओके डेरिवेटिव करके उसको जीरो करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलता है. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाता है h बार स्क्वायर्ड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर बाई 4πε0. अब ये सब वैल्यू अगर आप इनपुट करते हो तो तुम्हें आपको जो वैल्यू मिलता है दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम okay which is exactly the ground state radius of hydrogen atom which we know using Bohr theory okay तो next अब हम इसकी एनर्जी भी निकालेंगे. तो देखिए अब वही इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और तो हमें ये फाइनल रिजल्ट मिल जाता है ओके तो अगर ये हमें फाइनल रिजल्ट अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके so this is we know the ground state energy of hydrogen atom okay okay so हमने देखा कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया सिर्फ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया okay and we get the exact results of hydrogen atom okay so whatever we are doing it looks bizarre it looks counterintuitive but it is true okay हमें ये मानने में कितनी भी तकलीफ हो but this is true okay next is a very important thing the probabilistic interpretation of matter wave okay हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि यहाँ से फोटोन आ रहा है वो यहाँ पे इस स्लिट के थ्रू पास कर रहा है तो उसका एक एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम आ रहा है दैट्स व्हाई इट इज डिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द geometrical shadow region okay which explains the single slit diffraction but the question is can we predict the exact trajectory of an individual photon the answer is clearly no okay it's impossible to predict the trajectory okay because if we to detect the project okay आप मान लो कि आप एक इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी को हम ट्रेजेक्टरी कैसे मेजर करते हैं कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं हमें उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए ओके लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोल रहा है हम लोगों को कि हम उसकी पोजीशन एग्जैक्टली मेजर कर ही नहीं सकते सो ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता व्हाट वी कैन डू इंस्टेड इज दैट we can get the probability के सपोज कि यहाँ से जो फोटोन आ रहा है ए और बी रीजन में उसको लैंड करने का प्रोबेबिलिटी 80% है दैट वी कैन डू ओके और ये जो बाकी के रीजन है वो 20.5% 1% ऐसा कुछ हो सकता है ओके तो देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी दैट this in this region there will I mean whichever photon is coming from this source passing through the slit there is 80% probability that it will land between this region okay but where it will land we cannot predict that never okay due to this uncertainty principles okay and this is true I mean there is an this is an experimental verification of that okay ये जो ये इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस पैटर्न है ओके तो ये जो पहला वाला जो पिक्चर है ये पिक्चर आप देख सकते हो कि ये सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन के साथ किया गया था ओके
तो 10 इलेक्ट्रॉन नंबर इज वेरी वेरी आई मीन लो। ओके, तो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन के साथ ये जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा ये कुछ आई मीन अजीब से, देर इज नो पैटर्न, नॉट इवन अ पैटर्न। तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी हैपोजेटली कहीं भी वो लैंड कर रहे हैं। ओके, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, आई मीन एनी पैटर्न। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉन नंबर को बढ़ाते हैं, ओके 10 से हम यहाँ पे 100 ले रहे हैं। ओके, तो 100, तो अब देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ये कॉन्स्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थोड़ा बहुत हमें समझ में आ रहा है। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लैंड कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाते हैं तो हमें ये धीरे धीरे ये पैटर्न हमारे पास क्लियर होता है। ओके, तो रिजल्ट विल बी द सेम। ओके, जो भी हमें आई मीन क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, या फिर अगर हम मान लेते हैं कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वेव नेचर इस्तेमाल करके हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स लगाते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं एंड वेव पार्टिकल डुअलिटी लगाते हैं, तो हमें वैसा ही एक सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है। ओके, एंड व्हिच इज नॉट ओनली ट्रू फॉर लाइट, this is for electron. You can see this is an electron interference pattern. Okay, so this is true that particles do have a wave like nature. So the wave particle duality, it doesn't matter how bizarre it sounds, but it is true. Okay, because we have experimental findings of that. Okay, we have experimental proofs. Okay, and using that wave particle duality, the wave nature of particle and uncertainty principle, we can actually explain, and actually we can actually in physically we can perform experiments which will give us similar results, which can only be described if we consider that there is a wave. Okay, so this is it for now. Thank you. See you in the next class.